ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਗ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। अच्छी तस्वीर सामने आई किसानों की तरफ से, वो जहाँ पे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, वो सब कुछ सफाई किया आप लोगों ने बॉर्डर पे, यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, उधर अमर अनशन 15वें दिन में दाखिल हो गया जो खनौरी पर चल रहा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का। यहाँ पर हम आज सफाई भी, यहाँ बहुत सी जहरीली गैसें फेंकी गई मोदी सरकार की ओर से, तो उनका प्रभाव रहता है नीचे, तो क्योंकि आज तो आगे नहीं बढ़ना है, आज उसकी मीटिंग करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, तो इसलिए पहले जितने कुछ यहाँ मिला सफाई कर ली हमने भी। और सफाई वैसे भी होनी चाहिए, किसान गिर जाए, कोई पत्थर हो उससे भी चोट लग सकती है, तो पूरा हम लोग वैसे भी यहाँ जब से रह रहे हैं बहुत बारी हम लोग सफाई करते हैं। यहाँ घास हो जाता सब कुछ, जहाँ रहना है रोड के ऊपर उसके ऊपर सफाई भी करनी, तो सफाई मुहिम आज हमने चलाई है। आपने कल कहा था कि सरकार की तरफ से प्रपोजल आने वाला है, आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या कुछ प्रपोजल आया? अभी तक मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था आपको पीछे, अगर कोई प्रशासन का अधिकारी बातचीत करना चाहता है हरियाणा की ओर से, चाहे एसपी हो, डीसी हो या कोई हो, वो परसेप्शन बनाना चाहेंगे कि हमने बातचीत करनी चाहिए, किसान नेताओं ने हमारी बातचीत ठुकरा दी। लेकिन हम लोग मीटिंगों में भी भाप जाते हैं कि कुछ भी अभी केंद्र का वार्ता करने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो हमने बात सुन ली, देश के सामने मैसेज हमने दे दिया कि हम भाई अगर वार्ता होती है तो उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए समय दे रहे हैं। अब 2 बार वार्ता के कहकर प्रशासन आया, पहले तो कि हम प्रशासनिक अधिकारी बातचीत करना करे भाई,
फिर रास्ता क्या है, फिर रास्ता तो है भाई एक एक करके दिल्ली ले जाओ, उस पर सहमति नहीं है। दूसरा रास्ता तो बातचीत का, तो बोले करो, बोला कोशिश कर रहे हैं, समय दो। हमारी ओर से पूरे देश को मैसेज जा रहा है ना, अभी हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, सरकार टकराव चाह रही है, तो ये उनकी मर्जी है ना। हम तो कल प्रधानमंत्री जी आए, कुछ भी उन्होंने ना तो किसान आंदोलन के बारे में बोला, ना किसानों मजदूरों की बातचीत के बारे में बोला, ना कोई दूसरी मांगे की बोला। अब जो बना रहे हैं भी पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी मिलती है, तो भाई 1967 से मिल रही है धान और गेहूं के ऊपर, तो थोड़ी सी पंजाब में कपास और गन्ना बिकता है। सवाल तो है बाकी सभी जो 23 फसलें आप CACP के ऊपर देते हो, उसका ऐलान करते हो एमएसपी का, उसको खरीद उतने पैसे में करने की बात है, उससे आप भाग रहे हो। आप ये बातें इलेक्शनों में अपने जो मैनिफेस्टो में जो हमसे पहले आंदोलन में बातचीत हुई वो लिखकर दे चुके, उसके ऊपर बात करो भाई। और आपके देखे ना, आपके खेती बाड़ी मंत्री बोलते हैं C250 के अनुसार हम लोग जो दाम देंगे, आप A+ एप्पल के अनुसार से भी कम दाम दे रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया के माहिर जानते भी कितना झूठ बोला जा रहा है देश के सामने। तो हमारी कोशिश है, तो मैंने पहले भी कहा, पूरे देश के किसान खेत मजदूर को तिल तिल मरता नहीं देख सकते। अगर हमें कुर्बानियां देकर भी ये मांगे मनवानी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपने कहा कि सरकार जो है वो प्रस्ताव नहीं दे रही है बातचीत करने को, आप तैयार हैं बातचीत करने को, तो सरकार की इस चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? और साथ में आपने पंजाब गवर्नमेंट से भी आग्रह किया था कि वो प्रेशर बनाए सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि ताकि वो किसानों की बात सुने। दो बातें देखिए, आज अभी तक जो भी हमने 11 सरकार देखी है, भाजपा की सरकार, JP नड्डा जी की पॉलिसी, RSS की पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी, वो एक नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव के आधार पर अपनी जीत तय करते हैं। बाकी कुछ तो विकास के हिसाब से बात करेंगे, जिस तरह से पहले चलता था वही तरह का ये सब चल रहा है। तो उन्हें लगता है भी जैसे हम फूल फेंके तो फूलों में जो कुछ किया, तो फूल पूरे देश को दिखा के अभी पुलिस तो बहुत अच्छी है, आपने कहा फूल में केमिकल था, क्यों नहीं, तो बोल ही रहे हैं। वो जो पत्रकार गए, बहुत से गए, जब उन्होंने सूंघा सांगा तो उनको महसूस हो रहा था कुछ दिक्कत आ रही थी। तो ये बातें हमने अपने किसानों से कई पुष्टि की। मैं तो कोई फूल को केमिकल लैब में जाके तो नहीं, मेरे पास कोई रिपोर्ट है, तथ्य जो कुछ बोला गया मैं तो वही, तो वो हमने देखा। तो चाय दे के, खाना ला के, पहले वो नैरेटिव बना रहे हैं भी हम कितने पॉजिटिव हैं, है ना। खट्टर साहब भी चले जाइए, बहुत से व्हीकल है, ये क्या है। तो वो किसानों की समस्या का हल करने के ऊपर सोचें, वो कोई इसका हल कैसे करे, और ये सोचे भी ये भारत के वासी है, इन्हें लोकतंत्र में अपनी बात करने का हक है, इस तरह से सोचे। उधर नहीं सोच रहे कि आपके खिलाफ पूरे देश में परसेप्शन खड़ी कर देंगे और आप जो मर्जी बोलते रहे, आपको कुछ सुनेगा नहीं, वो इस पे काम कर रहे हैं। ये ताही हमारे से वार्ता नहीं हो रही है। एक परसेप्शन ये भी है कि ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।